محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ شہر نظام آباد کے علاقے مالا پلی سے تعلق رکھنے والے دو بہنیں پھنسی یوکرین میں، جنگ کے سبب حالات خوفناک۔ دو بہنوں کی گھر واپسی کے لیے والدین کی جانب سے مہم جاری۔ نظام آباد محکمہ بلدیہ کا سالانہ بجٹ اجلاس کا انعقاد۔ سال 2022-23 کے لیے 26,077.52 لاکھ روپیوں کا تخمینہ بجٹ منظور۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اجلاس میں کی گئی کئی نمائندگیاں۔ شہر کے ہر افواج کو تمام تر سہولیات کی فراہمی ہی مقصد۔ MLA بیگالا گنیش گپتا کا خطاب۔ ریاستی وزیراعلیٰ KCR متحدہ ضلع MLC کا دہلی دورہ، کئی قائدین سے کی ملاقات و ملک کی ترقی کے لیے کیا تبادلہ خیال۔ ریاست تلنگانہ میں 20 سال میں ترقی کی ملک کی کسی اور ریاست میں نظیر نہیں۔ ریاستی وزیراعلیٰ KCR کی کاوشوں کے سبب ریاست ترقی کی راہ پر گامزن۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی، انہوں نے مختلف منڈلز میں 15 کروڑ کی لاگت سے کیے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ ریاستی وزیر سرینواس گوڈ پر جان لیوا حملہ، اس پر حملہ ور کو BJP قائدین کی تائید۔ شرمناک، BJP قائد DK ارون و جتیندر پر مقدمہ درج کرنے کا ضلع اٹیال صدر PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی نے کیا مطالبہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر نظام آباد کو خصوصی فنڈز کے ذریعے تمام ڈویژن میں ترقیاتی کام عمل میں لائے۔ ہاسپٹل کے ہراسانی سے غریب عوام کو بچائے۔ سلب علاقوں کے لیے خصوصی فنڈز و جنرل فنڈز کی جائی عمل میں لائے۔ وہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیتے ہوئے عمل آوری کرنے کا و دیگر مسائل پر مجلس اتحاد المسلمین ڈپٹی میئر ادریس خان و بلدیہ فلور لیڈر شیخ الفاضل و دیگر نے اٹھائی آواز۔ آج شہر نظام آباد کے نیو امبیڈکر بھون میں محکمہ بلدیہ بجٹ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں اس اجلاس میں شہر کے تمام بلدیہ ڈویژنز کے کارپوریٹرز، رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا، MLC VG گوڈ، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی و بلدیہ کمشنر نے شرکت۔ اس موقع پر بلدیہ فلور لیڈر شیخ الفاضل نے رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ قبل میں ان کی جانب سے بھاری فنڈز کی منظوری سے شہر میں کافی بہترین انداز میں ترقیاتی کام عمل میں لائے گئے، اور اس بار بھی اسمبلی بجٹ اجلاس میں نمائندگی کرتے ہوئے 100 کروڑ کے فنڈز کی منظوری کو یقینی بناتے ہوئے تمام ڈویژنز میں یکساں ترقیاتی کام انجام دینے کے لیے انہوں نے اپیل کی، جس پر انہوں نے تیقن دیا کہ وہ شہر کی ترقی کے لیے CM KCR متحدہ ضلع MLC کے کویتا سے نمائندگی کرتے ہوئے فنڈز کی منظوری کو یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح ڈویژن نمبر 52 مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر واہلیہ افسر بیگ شائستہ افسر نے ضلع کلکٹر سے نمائندگی کی کہ شہر کے علاقے خلیل واڑی ہاسپٹل میں ICU میں صرف ایک دن کے لیے 10,000 روپیوں کا بل عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ کئی ہاسپٹل میں پارکنگ کی تک سہولت موجود نہیں۔ اور اس علاقے میں اسی طرح مجلس اتحاد المسلمین معتمد و کوآپشن ممبر محمد شہباز نے بجٹ اجلاس میں لگائے گئے فلیکس پر اردو موجود نہ ہونے پر سوال اٹھایا، اور اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہونے کے باوجود بھی محکمہ بلدیہ کی جانب سے اس طرح کی لاپرواہی پر افسوس کا اظہار کیا۔
जिस पर महकमे बल्दी कमिश्नर ने बल्दी मुलाजमीन को आने वाले हर प्रोग्राम में उर्दू को तरजीह देने के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस व बल्दी फ्लोर लीडर शकील फाजिल ने सहाफियों से बाद इजलास बात करते हुए कहा कि कब्ल में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब को शहनिजामाबाद की तफसीली रिपोर्ट के साथ मजलिसी कायदीन ने मुलाकात की और इलाकों की तरक्की के लिए इनकी हिदायत पर रियासती वजीर KTR से भी मुलाकात की और रवा साल के असम्बली बजट में तमाम डिवीजन्स के लिए खुसूसी फंड्स मंजूर होने की तवक्को की। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान, माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर व दीगर खवातीन कॉर्पोरेटर्स मौजूद जो 260 करोड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें नैन ग्रैंड प्लान्स के तहत अमाउंट का जिक्र है और साथ ही साथ निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो रेवेन्यू सेक्शन से इनकम होती है उसका मेंशन है। ओवरऑल डेवलपमेंट के ताल्लुक से ये बात सामने आई कि निज़ामाबाद डेवलप करने के लिए जो असम्बली में आने वाले दिनों में जो बजट सेशन लग रहा जा रहा है उसमें बहुत सारे कॉरपोरेटर्स हमारे यही इसरार कर रहे थे कि निज़ामाबाद को कुछ स्पेशल ग्रांट के तौर पर 100 करोड़ बजट दें। ये हमारा भी मुतालबा है कि निज़ामाबाद को फिर से 100 करोड़ अगर आप सैंक्शन करेंगे तो यकीनन निज़ामाबाद फिर से दूसरे जो शहर है तेलंगाना में हैदराबाद से हट कर उसके मुकाबले में खड़े रहेंगे, बल्कि हमारी उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं। और हम असद साहब से भी, बलाला साहब से भी हम 12 नुमाइंदगी कर चुके हैं कि निज़ामाबाद के लिए स्पेशल 100 करोड़ रुपए का बजट। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR और मुत्तहदा ज़िले रुकन क़ानून साज़ के कविता का दौरा थर्ड फ्रंट की तैयारी के लिए मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात जारी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व रियासत की हुक्मरान जमात TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज BJP के रुकन राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय किसान मोर्चे के सदर राकेश के अलावा मोर्चे के दीगर लीडरान से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत में हुई ये मुलाकात मरकज की मोदी ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ हम ख्याल सियासी जमातों को मुत्तहद करने की मुहिम का एक हिस्सा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जो दिल्ली में कैंप किए हुए है, इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों को मुत्तहद करने की मसाई में मसरूफ है। चीफ मिनिस्टर ने इन दोनों रहनुमाओं के एजाज में लंच का एहतमाम किया। समझा जाता है कि मुल्क में होने वाली तब्दीलियों के सिलसिले में इन लीडरान से बातचीत की गई। इस मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि एक मरतबा फिर मरकज में मुखालिफ BJP महाज की तश्कील की क़ियास आराइयां सामने आ रही हैं। पहले ही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन के साथ साथ मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी राव के साथ राब्ते में है। इसी सिलसिले की कड़ी के हिस्से के तौर पर 20 फरवरी को चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात की, जिसमें उद्धव ठाकरे ने वफाकी इंसाफ के लिए चंद्रशेखर राव की कॉलेज की तालीम में तेलंगाना की मुस्लिम लड़कियां कौमी सतह पर सरफहरिस्त, कॉलेजेस के दाखिलों में 27% का इजाफा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज की रिपोर्ट। तेलंगाना में गर्ल्स माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस के शानदार नताइज बरामद हो रहे। तेलंगाना को मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज एजुकेशन में कौमी सतह पर पहला मुकाम हासिल हुआ है। कॉलेजेस में दाखिलों के ताल्लुक से कौमी सतह पर मुस्लिम लड़कियों की शरह 3% है, जबकि तेलंगाना में ये शरह 27% है। इसी तरह तेलंगाना में मुस्लिम लड़कियों की तादाद में 10% इजाफा हुआ, जबकि कौमी सतह पर 3% इजाफा हुआ है। हुकूमत तेलंगाना ने समाज के तमाम गरीब तलबा को कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम सरकारी स्कूल्स में मुफ्त फराहम करने के लिए SC, ST, BC और अखिलती अकामती स्कूल्स कायम किए हैं, जिससे तलबा का मुस्तकबिल ताबनाक हो रहा है। बिलखुसूस मुस्लिम लड़कियों के तालीमी तनासुब में इजाफा हो रहा है। मुत्तहदा आंध्रा में सिर्फ 12 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम थे, जहां मुनासिब बुनियादी सहूलतें भी नहीं थी। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने अखिलती रेसिडेंशियल स्कूल्स की तादाद को 204 तक पहुंचा दिया है, जिसमें लड़कियों के लिए 97 स्कूल से इन स्कूल्स को जूनियर कॉलेजेस की हैसियत से भी तरक्की देते हुए मुफ्त तालीम, ताम व क़याम की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इन स्कूल्स में वसी क्लासेस, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लैब्स, असरी जिम वगैरह की सहूलत फराहम की जा रही है। तालीम के साथ कल्चरल प्रोग्राम्स में तलबा की हौसला अफजाई की जा रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को फरोग देने में मुकम्मल ताउन व इश्तराक किया जा रहा है। हुकूमत की हौसला अफजाई से मुस्लिम तलबा की ख्वानदगी शरह में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। 2014-15 और 2019-20 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आदाद शुमार में मुस्लिम तलबा की तालीमी तरक्की इसका सबूत है। इन दोनों सर्वे के आदाद
اعداد و شمار کا انڈین انسٹیٹیوٹ آف دلت اسٹڈیز نے جائزہ لیا، جس کی رپورٹ چونکا دینے والی ثابت ہوئی ہے۔ کالج سطح کی تعلیم میں تلنگانہ کی مسلم لڑکیاں سارے ملک میں سر فہرست ہے۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کا سالانہ بجٹ اجلاس سال 2022-23 کا تخمینہ بجٹ منظور۔ میونسپل کارپوریشن کا سالانہ بجٹ اجلاس آج میئر نیتو کرن کی صدارت میں نیو امبیڈکر بھون نظام آباد میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگالا گنیش گپتا، MLC وی جی گوڈ، ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی کے علاوہ کارپوریٹرز نے شرکت کی اور سال 2022-23 کا تخمینہ بجٹ 26.77.52 لاکھ روپے منظور کیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن کو راست طور پر 7,466.52 لاکھ روپے راست طور پر حاصل ہونے والی آمدنی و ڈپازٹ اور خرچ کے تحت 1,320.00 لاکھ روپے کی آمدنی حاصل ہوئی اور اسی طرح گرانٹ کی شکل میں 17,291.00 لاکھ روپے کی آمدنی کا تخمینہ کیا گیا اور تمام شعبوں سے متعلقہ خرچ سال 2022-23 کے معاشی سال میں 7,463.25 لاکھ کا بجٹ خرچ کرنے کے لیے تخمینہ کیا گیا۔ گرانٹ کے تحت حاصل ہونے والے فنڈ سے 883.45 لاکھ روپے کا تیسرا حصہ میونسپل کارپوریشن میں ضم کیے جانے والے سلم علاقوں اور اقلیتی علاقوں کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کا بھی تخمینہ کیا گیا۔ اس موقع پر تمام ڈویژن کے مسائل کے حل کے لیے مکمل اقدامات کرنے کا میئر نے ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر انچارج پرنسپل کمشنر ایڈیشنل کلکٹر نظام آباد چترا مشرا نے بتایا کہ ڈویژنوں میں واقع آبادی کے تناسب سے خرچ بھی کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور اس خصوص میں چیف منسٹر مسٹر چندر شیکھر راؤ نے زائد فنڈز کے لیے نمائندگی کرنے کے لیے رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگالا گنیش گپتا سے خواہش کی۔ ٹیکسوں کی وصولی کے لیے بھی اقدامات کرنے کے لیے اظہار کیا گیا۔ اس اجلاس میں ڈپٹی میئر ادریس خان، ڈپٹی کمشنر روی بابو اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ ضلع ٹیارہ صدر PUC کمیٹی چیئرمین عالم MLA جیون ریڈی کے قریبی رشتہ دار اللہ پیدا بجنا کے اچانک فوت ہونے کے باعث پیپری میں منعقدہ آخری رسومات میں ضلع ٹیارہ صدر عالم جیون ریڈی نے کی شرکت۔ ضلع ٹیارہ صدر PUC کمیٹی چیئرمین عالم MLA جیون ریڈی نے قریبی رشتہ دار پیدا بھوجنا کی اچانک فوت ہونے پر پپری گاؤں میں منعقدہ آخری رسومات میں شرکت کی اور گزشتہ ہفتے پہلے ناسا صحت کے باعث حیدرآباد کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں شریک طبی امداد حاصل کرنے والے پیدا بھوجنا کی صحت کے متعلق جانکاری حاصل کی، لیکن گزشتہ رات کے اوقات کار میں قلب پر حملے کے باعث انتقال ہونے کی بنا پر آرمور MLA و ضلع ٹیارہ صدر جیون ریڈی قریب رہ کر نعش کو حیدرآباد سے پپری گاؤں تک لا کر آخری رسومات میں شرکت کی۔ ضلع کے کوٹگر منڈل میں واقع یادگار پور و ولبھا پور دیہات میں 15 کروڑ روپے مالیتی رقم پر مبنی ترقیاتی کاموں سے متعلقہ اراضی پر ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے رکھا سنگ بنیاد۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے ضلع کے کوٹگر منڈل میں واقع یادگار پور ولبھا پور دیہات میں 15 کروڑ روپے مالیتی رقم پر مبنی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں CM KCR کی کامیاب دوراندیشی کے تحت کالیشورم پروجیکٹ و گوداوری ذخائرات کو نظام ساگر میں لایا گیا اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی دقت نہیں ہوگی اور ہر سال 2 فصلیں مکمل طور پر کاشت کرنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانسواڑہ حلقے میں مقیم غریب عوام کے ذاتی گھر کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے متعلق خدمات انجام دینے کا اظہار کیا۔ గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ 16 లక్షలతో ప్రారంభం చేసుకున్నాం। మరొక 5 లక్షల రూపాయలు కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను, అది ఇంకా పని మొదలు పెట్టినట్టున్నారు, కాంపౌండ్ వాళ్ళకి 5 లక్షలు ఇచ్చాను, ఆ పని కూడా మొదలు పెట్టారు। మన NRGS కింద ఇప్పుడు సోదరులు సాయిల్ గారు చెప్పినట్టుగా మరొక 5 లక్షల రూపాయలు NRGS కింద ప్రపోజల్ పంపంటే మండల నాయకులందరూ కూర్చుండి యాదగార్పూర్ గ్రామానికి ఒక మరొక 5 లక్షల రూపాయలు CC రోడ్ శాంక్షన్ అయింది, వెంటనే మార్చిలో పట్టే పని మొదలు పెట్టుకోవాలి। निजामाबाद मालापल्ली की 2 तुलबात यूक्रेन में फंस गई, वालिदैन परेशान। रशिया और यूक्रेन में जंग की वजह से यूक्रेन में MBBS की तालीम हासिल करने वाली कई हिंदुस्तानी तुलबा यूक्रेन में फंस गई हैं और बहिफाजत वापसी के लिए बेहद फिक्रमंद है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म की मौत के बाद हिंदुस्तानी तुलबा के वालिदैन तशवीश में मुब्तला है। निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले कई तुलबा व तालिबात आज भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। निजामाबाद शहर के मालापल्ली से ताल्लुक रखने वाले 2 तुलबा
तलबात यूक्रेन में फंस जाने से इनके वालिदैन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR से इन 2 तलबात की बहिफाजत वापसी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की अपील की है। मालापल्ली के साकिन अब्दुल हफीज की दुख्तर बुशरा और सानिया सफूरा का रिक्वेंशल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS साल 2 में ज़ेरे तालीम है। जंग ज़दा सूरत हाल की वजह से वालिदैन से फोन पर रब्त में है। यूक्रेन से बज़रिए ट्रेन बहिफाजत बाहर निकल जाने के लिए ये 2 तलबात दीगर तलबात के हमरा कोशिश कर रही हैं। तमाम हिंदुस्तानी तलबा की बहिफाजत वापसी के लिए हिंदुस्तानी अवाम की जानिब से हुकूमत हिंद से तेज रफ्तार इक़दामात का मुतालबा किया जा रहा है। मेरा नाम हाफिज अब्दुल हफीज़ है। मेरा ताल्लुक पिरकिट से है, आरबो बंडल। मैं पिरकिट में जो है साबिक़ा सदर मरकज़ी कमेटी रह चुका हूँ और माशाल्लाह जो मेरी लड़की 2 MBBS के लिए यूक्रेन गई हुई थी, जहाँ पर वो आला तालीम के लिए MBBS के लिए, और वो 2 साल वहाँ पर माशाल्लाह सेकंड ईयर में थी और कारक्यू नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है वो लोग जो है तालीम को अंजाम दे रहे थे। इसी असला में जो है वहाँ पर क्राइसिस चालू हो गए और जो है वहाँ पर जंग का माहौल बन चुका था। तो उसी असला में जो है मैंने जो है हमारी 2 बच्चियों के लिए 27 फरवरी का जो फ्लाइट भी बुक कराया था दोनों के लिए। वो बुक कराने के बाद भी जो है माशाल्लाह जो है उनको इंटीमेशन भी दे दिया गया था कि भाई आपका 27 को फ़्लाइट है, लेकिन जो है 27 से पहले जो है 24 को जो है वहाँ पर जो है जंग स्टार्ट हो गई। उस वहाँ पर जो है 24 से ही जो है वो लोग फंसे हुए थे और कल जो है 1 तारीख को जो है वहाँ से निकले। हम इंटीमेशन दे चुके हैं, ट्वीट भी किए, यहाँ तक कि हम जिसको करना था सब लोग करें, लेकिन जो है कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन फिर भी जो है कल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जद्दोजहद करके हमारे जो बच्चे ट्रेन में सवार हो गए। अब अल्लाह के फضل करम से हंगरी के बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं, वहाँ से वो लोगों का इंतज़ाम हो रहा। अभी ट्वीट भी आया, हमको फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं वहाँ से कि भाई जो है हम इंतज़ार कर रहे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है बच्चियाँ पहुँचने वाली है। इंशाल्लाह जो है बॉम्बे का फ़्लाइट है, बोलकर हमको पता चला बॉम्बे के फ़्लाइट से वो लोग आएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह का करम है कि मेरी अदबन गुजारिश है कि वहाँ पर और 700 स्टूडेंट इस वक्त अभी भी वहीं पर मौजूद है, उसी स्टेशन में, क्योंकि बच्चे हमारे बता रहे कि भाई जो उनको कॉल आ रहे कि वो बच्चे वहीं पर पड़े हुए हैं, उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। और सबसे बदनसीबी ये है कि हमारे बच्चियों के साथ में जितने भी बच्चे हैं 48 घंटे से उनको खाना नहीं है, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। और 16 किलोमीटर का सफ़र जो है पैदल तय करके उनकी हॉस्टल से जो है स्टेशन पहुँचे कल वो लोग। उसके बाद फिर दूसरे स्टेशन को पहुँचने के लिए 3 घंटे का सफ़र वो भी तय करे। तो कल खाना उनको रात में जो है ट्रेन में मिला। उनको जो तुर्किश जो फैमिली थी वो उनका इस्तेमाल बेहतरीन करी और माशाल्लाह जो है यूक्रेन के जो कारक्यू जो सिटी है वहाँ से जो बॉर्डर हंगरी का है, वो हंगरी बॉर्डर तक का 20 घंटे का सफ़र है। 20 घंटे, अब तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं, अभी 2 घंटे बाकी है। 2 घंटे में वो लोग पहुँचने वाले हैं। अभी फ़ोन पे हमारी आपके व्हाट्सएप पे कॉल हुआ हमारा, तो जो बेहतरीन अंदाज में जो तो बता रहे कि बहुत अच्छे इंतजाम हुए, बहुत हमारा देखभाल करे, तो बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो लोग आए हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे हिंदुस्तानी हुकूमत से, मेरी अदबन गुजारिश है कि जितने भी तलबा, जितने भी स्टूडेंट मेडिकल की लाइन के हैं वो सारे मेडिकल की लाइन के हैं, चाहे कोई किसी भी कौम का हो, इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। मैं हिंदुस्तानी हुकूमत से अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो जो रशियन गवर्नमेंट से बात करे और तफसीली गुफ्तगू करे, इसलिए कि कारक्यू नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे 3500 स्टूडेंट इंडियन है, 3500 स्टूडेंट इंडियन है और वहाँ पर टोटली 10,000 स्टूडेंट कारक्यू में रहते हैं। उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। उनकी कारक्यू से जो है रशियन बॉर्डर सिर्फ 80 किलोमीटर का डिफरेंट है। 80 किलोमीटर तकरीबन जो है 2-4 घंटे में जो है सर्वे कर सकते। तो मैं जो है अदबन गुजारिश करता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि भाई जो है वहाँ के प्रेसिडेंट से बात करें, रशियन प्रेसिडेंट से, और कम से कम जो है हमारे जो जितने भी हमारे स्टूडेंट वहाँ पर, हमारे हिंदुस्तान के तलबा वहाँ पर इस वक्त खैर के आलम में है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जो उनके लिए रास्ता निकाले और उनको। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर ICICI फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी में ग्राम पंचायत के अहाते में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त आई टेस्ट कैंप का अवामी नुमाइंदों ने इफ्तिताह अमल में लाया।
कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर ICICI फाउंडेशन के ज़रिए निगरानी में ग्राम पंचायत के अहाते में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त आई टेस्ट कैंप का MPDC M सुधाकर व मंडल कोऑप्शन मेंबर पाशा के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी शांति कुमार, ICICI फाउंडेशन मेंबरान राहिल, डॉक्टर बालाजी से श्रीनिवास व मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। కమ్మర్పల్లి గ్రామంలో ICICI ఫౌండేషన్ వారు ఉచిత కంటి శిబిరాన్ని ప్రారంభించినందుకు కమ్మర్పల్లి గ్రామం తరఫున ప్రజల తరఫున వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఇట్టి శిబిరాన్ని గ్రామ ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతూ. నా పేరు రాహుల్. నేను కమ్మర్పల్లి మండలంలో కమ్యూనిటీ ఫెసిలిటేటర్గా పనిచేస్తున్నాను. తోటి సిబ్బంది శ్రీనివాస్ కమ్యూనిటీ ఫెసిలిటేటర్గా కమ్మర్పల్లి గ్రామంలో సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈరోజు ICICI ఫౌండేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో మన కమ్మర్పల్లి గ్రామంలో కంటి వైద్య కేంద్రాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. అయితే గత సంవత్సర కాలం పాటుగా మేము ఈ కమ్మర్పల్లి గ్రామంలో, కమ్మర్పల్లి మండలంలో ICICI ఫౌండేషన్ వారు రైతులతో అగ్రికల్చర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ పట్టణాలకు వెళ్ళి కంటి పరీక్షలు చేయించుకునే ఇబ్బంది అవసరం లేకుండా बासर के जनकश में कायम किए गए शिवाजी के मुजस्समे का रियासती वजीर हरीश राव व इंदिरा करण रेड्डी ने नकाब कुशाई अंजाम दी। बासर के जनकश में क़याम अमल में लाए गए शिवाजी के मुजस्समे का रियासती वजीर हरीश राव व इंदिरा करण रेड्डी के हाथों रस्मी जुराई अमल में लाई गई। वो बात वहाँ पर क़याम किए गए इजलास से रियासती वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि बासर जनकश में शिवाजी के मुजस्समे का क़याम अमल में लाना काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया और बताया कि शिवाजी के दौर इक़्तिदार में कई जंगें हुई, लेकिन इन जंगों में कभी भी तशद्दुद की हौसला अफजाई नहीं की गई। इसी तरह से CM KCR की जानिब से शुरू की गई तहरीक के जरिए रियासत तेलंगाना हासिल होने के बाद इनके दौरे इख्तिदार में रियासत तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात का किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MLA विठल रेड्डी, MLC डंडे विठल, वेणुगोपालचारी, TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता व दीगर ने शिरकत की। जिनसी हरासानी में मुलविस शेख असद को सेहत पंचाक्षरी सेकेंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फास्ट ट्रैक कोर्ट की जानिब से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिले निजामाबाद शहर के रहने वाले शेख असद की जानिब से एक नाबालिग लड़की पर जिनसी हरासानी करने के इल्जाम में सेहत पंचाक्षरी सेकेंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फास्ट ट्रैक कोर्ट की जानिब से मुलजिम असद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात के शेड्यूल में तब्दीली। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात के शेड्यूल में मामूली तब्दीली की है। नए शेड्यूल के मुताबिक इंटर साल अव्वल के 22 अप्रैल तक 11 मई तक इम्तहानात मुनाकिद होंगे, जबकि 23 अप्रैल तक 12 मई सेकेंड ईयर के इम्तहानात मुनाकिद होंगे। पहले जारी करदा शेड्यूल में 20 अप्रैल से 2 मई तक इंटर साल अव्वल और 21 अप्रैल से 5 मई तक सेकेंड ईयर के इम्तहानात मुनाकिद हो रहे थे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदारों ने बताया कि 21 अप्रैल से JEE मेन इम्तहानात के पेश नज़र इंटरमीडिएट इम्तहानात के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। मोटर व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जी का मामला, निजामाबाद में तकरीबन 10 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल तलब। मोटर व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से जुर्माने आयद किए गए थे और जिले निजामाबाद में तकरीबन 10 करोड़ रुपए के जुर्माने की रकम वसूली तलब है। इस रकम को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से रियायत देते हुए जुर्माना अदा करने की ख्वाहिश की जा रही है और इसलिए मार्च के आखिर तक जुर्माने की रकम रियायत के साथ अदा करने के लिए मौका फराहम किया गया है। गुज़िश्ता साल जिले में 9.50 करोड़ रुपए जुर्माने आयद किए गए तो साल 2020 में 5 करोड़ रुपए और 2019 में 2 करोड़ रुपए जुर्माने आयद किए गए थे, लेकिन गाड़ियों की मालिकीन जुर्माने अदा करने के लिए तैयार नहीं। खास तौर पर 2 व्हीलर्स पर बेतहाशा जुर्माने आयद किए गए थे और ये सब अभी तक हुसूल तलब है। न सिर्फ गाड़ियों के जुर्माने बल्कि बगैर मास्क के गाड़ी चलाने पर भी जुर्माने आयद किए गए थे और ये भी 1035 रुपयों का जुर्माना वसूल तलब है और जुर्माने के वसूल के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए मौके से इस्तिफादा करने की अपील की जा रही है। मुत्तहिद होने पर ही सहाफ़ियों के मसाइल का हल मुमकिन, आर्मर के 2 प्रेस क्लब जिम्मेदारों ने किया इत्तेहाद का ऐलान।
जनबी हनुमान प्रेस क्लब आर्मर की सहाफियों की नवनाथपुरम प्रेस क्लब आर्मर में शमूलियत। आर्मर R&B गेस्ट हाउस पर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें नवनाथपुरम प्रेस क्लब सदर नरेंद्र, जनरल सेक्रेटरी सैयद जफर अली पुरुषोत्तम ने इस इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि आर्मर मंडल की सतह पर एक ही प्रेस क्लब होना चाहिए ताकि सहाफियों के इज्तिमाई के साथ अपने देरीना मसाइल को हल कर सकते हैं। आर्मर नवनाथपुरम में प्रेस क्लब की दरख्वास्त पर जनबी हनुमान प्रेस क्लब के सदर पुरुषोत्तम ने अपनी टीम के साथ नवनाथपुरम प्रेस क्लब में जम हो गए। हम इनका इस्तकबाल करते हैं और तमाम सहाफियों को नवनाथपुरम प्रेस क्लब के बैनर तले जमा होने की अपील करते हैं। इज्तिमाइयत मसाइल का हल है। इस इज्तिमाइयत के जरिए सहाफियों के लिए डबल बेडरूम मकानात, इंश्योरेंस व दीगर मराद रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर प्रशांत एस, श्रीनिवास, अजीम, गणेश गौड़, श्रावण, गंगा मोहन, संजीव व दीगर सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। విలేకరుల ఐక్యత చాటుతూ జంబి హనుమాన్ అధ్యక్షులు వారి సభ్యులు పురుషోత్తం, ఉపాధ్యక్షులు రాజేంద్రతో పాటు నవనాథపురం ప్రెస్ క్లబ్లో విలీనం కావడంతో పాటు ఏకతాటిపై రావడం శుభ పరిణామం। ఈ సందర్భంగా వారికి ఆర్థిక స్వాగతం పలుకుతున్నాం। ఇలాగే ఆర్మూర్లో విలేకరులందరూ ఏకతాటిపై వచ్చేసి అన్ని సంఘాలు ఐక్యతతో ఉన్నప్పుడే మనం మన హక్కులు సాధనకు కృషి చేసిన వాళ్ళం అవుతాం। ఈ సందర్భంగా टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर लम्हा फिक्रमंद। मुधुल में 100 बिस्तर पर मबनी दवाखाने के संग बुनियाद तकरीब के मौके पर तेलंगाना वज़ीर सेहत टी हरीश राव का खिताब। मधुल मुस्तखर में आज सुबह टी हरीश राव हेल्थ मिनिस्टर ने 100 बेड के हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा। बातज़ा एक तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी हमेशा से ही हर खित्ते के अवाम के लिए फिक्रमंद रही है और साथ ही साथ इन्होंने मुधुल MLA जी विठल रेड्डी के काम की खूब सताइश की, जिस पर तकरीब में मौजूद हल्के मुधुल के अवाम ने पुरजोश अंदाज में नारेबाजी करते हुए खुशी का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर फारूक अहमद सिद्दीकी, टीआरएस टाउन सदर, सैयद अली हाशमी अखलती सदर, सैयद आसिफ AMC वाइस चेयरमैन, मुरली गौड़ सीनियर लीडर, शेख महबूब पाशा अखलती नायब सदर, खालिद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद आमिर, शेख अहमद, साजिद लकी, सैयद इरफान, अनवर अली मौजूद थे। निर्मल జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నిరంతరం ముదోల్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేసేటువంటి పెద్దలు విఠల్ రెడ్డి గారికి, రాష్ట్ర అటవీ న్యాయ శాఖ మంత్రివర్యులు, దేవాదాయ శాఖ మంత్రివర్యులు, గౌరవనీయులు పెద్దలు, मुत्तहदा जिले निजामाबाद व कामारेड्डी में सरखे की वारदात में मुलविस मुजरिमीन को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 4 तोले सोना व 70 तोले चांदी को जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियान नागराजू ने मीडिया के जरिए किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियान नागराजू ने CP दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि इंदलवई पुलिस स्टेशन की अहाते में 4 मुजरिमीन मनी प्रकाश, मैनगल, ज्ञानेश्वर की नरसैया को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 2,60,000 मालियती रकम पर मबनी 4 तोला सोना व 70 तोले चांदी को जब्त करते हुए मुजरिमीन को रिमांड पर मुंतकिल कर दिया। इस मीडिया प्रोग्राम में एडिशनल DCP अरविंद बाबू, निजामाबाद ACP वेंकटेश्वर व दीगर ने शिरकत की। ఆ ఇళ్ళన్నీ రక్కీ చేసుకుంటారు। మార్నింగ్ టైం అంతా ఎక్కడెక్కడ ఇళ్ళు తాళాలు ఉన్నాయని చూసి ఇందులో దీనికి ప్రధాన సూత్రధారి వాడు అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నాడు, రామేశ్వర్ రాథోడ్, జయరామ్ రామేశ్వర్ రాథోడ్, తండ్రి రామేశ్వర్ ఎల్ఎస్ రేషు, 26 years, పార్దీ గ్యాంగ్ అంటారు వీళ్ళు। ఇతంది చంద్రాపూర్ డిస్ట్రిక్ట్, మహారాష్ట్ర। సో రాజూర్ విలేజ్ ఇతంది। ఇతను మొత్తం అందరూ హోల్ ఫ్యామిలీ అన్నట్టు, వీళ్ళంతా ఒకటే ఫ్యామిలీ, బామ్మడులు, అన్నదమ్ములు, మామలు ఇట్లా ఉంటారు అన్నట్టు। ఆల్రెడీ మనం ఒకరిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేసినాం। అతను ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నాడు, ఎందుకంటే అతను ఇంపార్టెంట్ కాకుండా అతను అంటే వన్ ఆఫ్ ద గ్యాంగ్ మెంబర్। బట్ మనకు ఇంపార్టెంట్గా ఈరోజు ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి మనం కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి వారి ద్వారా रिकवरी చేయడం జరిగింది। సుమారుగా बाक्सर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 108 एम्बुलेंस की सहूलत फ्राहम करते हुए मंडल में मुकीम अवाम को 24 घंटे एम्बुलेंस की सहूलत दस्तियाब में रखने का रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने दिया तय।
बासन मंडल में मुकीम अवाम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 108 एम्बुलेंस की सहूलत न होने की बिना पर होने वाली दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने बासर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 108 एम्बुलेंस को 24 घंटे अवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए दस्तियाब में रखने का तयक़ुन दिया। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के कत्ल की साजिश में मुलविस मुजरिमीन को बीजेपी की जानिब से शेल्टर देने पर जिले टियारा सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने मीडिया के जरिए किया बरहमी का इजहार। जिले टियारा सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के कत्ल की साजिश में मुलविस मुजरिमीन को बीजेपी की जानिब से शेल्टर दिए हुए मुजरिमों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि सियासी तौर पर मुकाबला करने की क़ुव्वत से महरूम होकर ऐसी जालिमाना हरकत करना आपको ज़ेब नहीं देता है और इस साजिश में मरकजी किरदार अदा करने वाले साबिक़ MP जितेंद्र रेड्डी से क्या ताल्लुक़ होने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत इसी तरह के जालिमाना हरकत पर सख्त तरीन कार्रवाई करते हुए कत्ल की साजिश में मुलविस मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुँचाए जाने का और इन मुजरिमीन को शेल्टर रहने वालों को भी सेक्शन 12 के तहत कसूरवार करार देने का इजहार किया। నేరుగా ఎదుర్కోలేక ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా పశ్చిమ బెంగాల్ లాంటి రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అయితే కుట్రలు కుతంత్రాలు రాజకీయ హత్యలు చేశారో అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో స్వయంగా ఒక రాష్ట్ర మంత్రిపై హత్య చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం దీన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాం। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम खबर पर। शहर निजामाबाद के इलाके मालापल्ली से ताल्लुक रखने वाले 2 बहनें फंसी यूक्रेन में जंग के सबब हालात खौफनाक। 2 बहनों की घर वापसी के लिए वालिदैन की जानिब से मुहिम जारी। निजामाबाद महकमे बल्दिये का सालाना बजट इजलास का इनेकाद साल 2022-23 के लिए 26,077.52 लाख रुपयों का तखमीना बजट मंजूर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इजलास में की गई कई नुमाइंदगियां। शहर के हर अवाम को तमाम तर सहूलियात की फराहमी ही मकसद। MLA बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR मुत्तहदा ज़िला MLC का दहली दौरा, कई कायदीन से की मुलाकात और मुल्क की तरक्की के लिए किया तबादला ख्याल। रियासत तेलंगाना में 20 साल में तरक्की की मुल्क की किसी और रियासत में नज़ीर नहीं। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की काविशों के सबब रियासत तरक्की की राह पर गामज़न। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी इन्होंने मुख्तलिफ मंडल्स में 15 करोड़ की लागत से किए तरक्याती कामों का आगाज। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ पर जानलेवा हमला, उस पर हमलावर को बीजेपी कायदीन की तायद। शर्मनाक, बीजेपी कायद DK अरुण व जितेंद्र पर मुकदमा दर्ज करने का जिले टियारा सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने किया मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।